all students. In this video we shall continue our chapter number 4, a question of trust. So let's continue this story. It was a quiet kindly voice, but one of the feminines in it. A woman was standing in the doorway and the sherry was rubbing against her. She was a young, quite pretty, and was dressed in the red. She walked to the fireplace and the straightened up over ornaments there. Don't Sally, down Sally, she said. Anyone would think I have been away for the month. She smiled at Horace and went on. Horace, however, I came back just in time, though. I didn't expect to meet a burglar. Horace had some hope because she seems to be amazed at meeting him. He might avoid in trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience it is for you a meeting. What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They are there too at once. यहाँ पे जो वो वॉइस था वो लेडी का वो बहुत ज़्यादा काइम था. वो लेडी बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और वो उन्होंने रेड ड्रेस पहना था. उन्होंने थोड़ी सी ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए थे और उन्होंने शेरी को कहा कि तुम बैठ जाओ. मतलब शेरी उनसे जैसे कि उन्हें जाना पहचाना हो वैसे उसकी बात मानता है. फिर वो जो है लेडी है वो कहती है कि तुम यहाँ पे मतलब तुम मैं जाने वाली थी. अच्छा हुआ मैं नहीं गई लंदन इतनी जल्दी और मैं वहाँ पे वापस आ गई. तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो है हमारा जो मेन चोर है मतलब कि हमारा डैन बाय है हॉरेस. वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कोई भी फैमिली मेम्बर अभी यहाँ पे होगा. तो कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं होगा. और उसने जो गर्ल थी मतलब वो जो वूमन थी उसने नोट किया. हाँ तो अब तुम क्या सोच रहे हो करने का. तो हॉरेस कहता है कि मैं ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाग जाऊँ. तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और वो तुम्हें कभी भी पकड़ेंगे. हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at the serious. You hurt me. अब यहाँ पे बात की है कि हॉरेस कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती. मैं टेलीफोन के सारे वायर कट कर दूँगा और जो है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी. ऐसा भी कर सकता हूँ उसको शायद बांध दे या फिर रस्सी से या किसी से उस वूमन को. तो वूमन कहती है कि सीरियसली बहुत सीरियस होकर कहती है कि तुम मुझे हर्ट करोगे और तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते. Horace pushed and said, I think I was trying to be flattered you when I said that. You didn't flatter me. Horace suggested, it would be nice if you would forget you even saw me. Let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for the very good reason and I hate the thought of prison. अब यहाँ पे दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है. तो वो लेडी कहती है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती. जब हॉरेस कहता है कि तुम मुझे जाने दो और जब कुछ भूल जाओ तो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती क्योंकि तुम यहाँ से जाके किसी और के घर पे रॉब करोगे तो मतलब कि चोरी करोगे तो ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगा. तो हॉरेस कहता है कि नहीं मैं ऐसी जगहों पे चोरी नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ उसी की जगह से उसी के घर से चोरी करता हूँ जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चोरी से. और मैं ये अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ चोरी और मुझे प्रिजन से हेट है. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate.
Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really meant it. She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to a prison, aren't you?" She came over to him, shaking her hand. "I have always liked the wrong kind of people." She picked up the silver box from the table and took cigarette for it. Horace turned to place her, and seeing that she might help him to off his gloves, and gave her his cigarette lighter. You will let me go," he had to lighter toward her. "Yes, but only if you are doing something for me. Anything you say." Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to the party tonight, so I came down to get them. But Horace smiled. "You have forgotten the number of the open the safe, haven't you?" "Yes," replied the young lady. "Just leave it me, and you will have them within a hour." "But I will have to break your safe." "Don't worry about that. My husband would not be here for a month. I will be have a safe made by the time." अब यहाँ पे पूरे पे जो ये बात की है कि जब वो लेडी है, जो लेडी कहती है कि तुम ऐसे ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं, तो तुम्हें सच में प्रिजन में जाने से डर लगता है, तो वो कहता है कि हाँ, और मैं वैसे भी अब आगे से चोरी नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा चोरी करना, जिससे सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे जो ये लेडी है वो खुद एक चोर है, और वो अब वहाँ पे कितनी जो है चालाकी से हमारा चोर है हॉरेस, उससे चोरी करवा रही है, और वो उसके सारे प्लान्स जानने की कोशिश कर रही है। और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, और वो सिगारेट लेती है, और वो हॉरेस को कहती है जलाने को लाइटर देने के लिए। तो हॉरेस अपना ग्लव्स उतार देता है। अब ग्लव्स उतार देगा तो उसके फिंगरप्रिंट है वो सारी जगह पे आ जाएंगे, तो वो अपने ग्लव्स उतार के लाइटर देता है, और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो हॉरेस कहता है हाँ ठीक है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। वो कहती है कि मुझे मेरे ज्वेल्स चाहिए थे आज मैं आपकी पार्टी के लिए, पर मैं नंबर भूल गई हूँ अपने। तो हॉरेस कहता है ठीक है, मैं ये सेल्फ तोड़ दूँगा और आपको आपके ज्वेल्स दे दूँगा। और फिर वो जो है लेडी, वो एक चोर होती है, उसे पता नहीं होता है कि कैसे खोला जाए से, शेफ है वो। तो फिर वो हमारे जो हॉरेस है, हमारा मेन चोर है, उसी से ये सारा काम करवाती है, और इस वजह से उसके फिंगरप्रिंट है वो सारी जगह पे लग जाते हैं हॉरेस के। अब वो कितनी शातिर है, कितनी चालाक है, अपना काम है वो हॉरेस से करवा लेगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted, and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to bring a plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at सोटोवर ग्रेंज। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ज्वेलरी है, वो जो है अपना काम अच्छे से करता है, हॉरेस वो तोड़ता है और सारे ज्वेलरी है वो उस लेडी को दे देता है। फिर वो एक दिन घर पे बैठा होता है, 2 दिन तक वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि वो वहीं पे रॉबरी करेगा, पर फिर उसे याद आता है कि कुछ इस महीने जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक उसे लेनी थी, वो मतलब कि वो इस महीने ही आने वाली है, तो उस बुक्स को वो खरीदना चाहता था। तो फिर वो रॉबरी करने का सोचता है फिर से। तभी डॉर्बेल बजती है और उस पुलिस वाले वहाँ पे होते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने रॉबरी की थी सॉल्टोवरगंज में। एक्चुअली उसने खुद रॉबरी नहीं की थी, उसने तो उस लेडी को ज्वेल्स निकाल के दिए थे। उसका पूरा प्लान तो फ्लॉप हो चुका था, और वो लेडी थी वो खुद चोर थी, वो वहाँ की ऑनर नहीं थी। His fingerprint, for he had opened the safe without room, and no one believing him when he said that without gloves were over the rooms, or no one believed when he said that the wife of the owner of the house had asked him
to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-toned woman of 60, said that the story was nonsense. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was the same profession he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about the honor among the thieves. अब यहाँ पे बात की है कि अब जब उसको पकड़ लिया जाता है हॉरेस को, तो हॉरेस कहता है कि मैंने तो चोरी की ही नहीं थी। उसको पता चलता है कि जो वो गर्ल थी वो एक्चुअली चोर थी, और जो वहाँ की जो वुमन ऑनर थी उस हाउस की, वो तो एक वुमन थी, वो 60 ईयर ओल्ड वुमन थी। और फिर वो जो 60 ईयर ओल्ड वुमन है वो उसकी बात को बिलीव नहीं करती है, क्योंकि वो वही लेडी थी ही नहीं जिसने उसको अपना सेल्फ है वो ब्रेक करने को कहा था और ज्वेल्स निकालने के लिए कहा था। तो ये सारी स्टोरी से नॉनसेंस लगती है और वो पकड़ा जाता है। अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में, और वो कभी कभी इस बारे में सोचता है उस घर के बारे में कि उसने उसको कैसे ट्रिक किया, कैसे चालाकी से उसने उसको धोखा दिया। तो जब भी कभी कोई बात करता है कि हमें हमारे जो प्रोफेशन में होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो तब जो है हॉरेस वो चिढ़ जाता है और वो उसको मारने के लिए तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि उसी के प्रोफेशन में जो थी लड़की उसने उसको धोखा दिया था, उसको चेस किया था। तो हमारी जो ये स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मीन्स कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसका ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो हमारी मेन थीम ये थी कि वो लड़की ने हॉरेस का ट्रस्ट ब्रेक किया था, उसी की जो है उसके ही पेशे की थी, वो चोर ही थी फिर भी। तो हमारी ये जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बनाए इसके थैंक यू एंड टेक केयर।